Good morning, friends. In the previous class, we have studied about the introduction of cloud computing. Today, we will continue our second lecture on history of the cloud computing and what is SOA. Before we continue, let us revise fastly what is cloud computing. So, all we know that cloud computing was the accessing some utilities over the internet. Internet means it will be a network, it may be a intranet, it may be a VPN, or all type of the applications such as web, email, web conferencing, CRM, etc. can be executed on the cloud. So one of the basic property that a cloud computing offers platform independency and it's a mobile and a collaborative. We have seen that. We have studied about the concept, what are different types of deployment models, what are different service models. In the deployment models, we have studied about public, private, hybrid, and the community models. Then, in the service model, we have discussed about what is the definition of infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So, all these things we have studied previously in our lecture. Now, today, in our second lecture, we will continue what is the history of the cloud computing. The cloud computing कब आया, कहाँ से आया, और कैसे ई प्रोग्रेस आज की डेट में कर रहा है. This cloud computing, you can see the figure. It came into existence near 1950 with the implementation of mainframe computers, accessible using some thin or static clients. Since the cloud computing has been evolved from static clients to dynamic ones and from software to services. So the following diagram, you can see that it explains the evolution of cloud computing. So 1950s, you can see that there was a mainframes where the automation phase was started and some localized infrastructure was developed. Then in 1960s, some rise of the PC was done and demand of personal desktop, decentralized computing, and different IT services industries were started. Then in 1990s, the VPN, the virtual private network, came and demand of high bandwidth and web technology was arrived. That is dot-com revolution came. Now I told something about VPN. So what is VPN? Basically, VPN is a virtual private network. It is an extension of a private network over a public network that enables us to send and receive data across shared or public network as if their computing devices were directly connected to the private network. मीन्स हम प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क में कुछ शेयरिंग करके प्राइवेट नेटवर्क डेवलप करते हैं, दैट इज़ अ वीपीएन. So today, if suppose you are using Airtel broadband or Tata Telecom, so they are giving you some VPN services also. Then in turn to 2000, IT infrastructure and the management outsourcing came, and here the new word, the virtualization came. Virtualization means virtual server, virtual machines came in existence. Then after 2010, the cloud computing demand increased rapidly. Here,
In the cloud computing, the software as a service came, infrastructure as a service came, platform as a service came, and different types of collaborative computing and utility computing model was designed and developed. So अब अगर देखें हम तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे पहले तो हम केवल नेटवर्क नेटवर्क की बात ही करते आए 1950 से लेके 2000 तक कि कहीं कुछ नेटवर्क पे ही काम हो रहा था। लेकिन जब 2010 पे आए तो 2000 में जब वर्चुअलाइजेशन की बात आने लगी, वर्चुअलाइजेशन वाज़ डेवलप्ड, तो अब यहाँ पे हम वर्चुअलाइजेशन आया तो हम वर्चुअलाइजेशन मीन्स अब हम वर्चुअल कंप्यूटर्स को यूज़ करने लगे, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने लगे। यहाँ पे सब कुछ मतलब ओवरऑल प्लेटफ़ॉर्म, सॉफ्टवेयर एंड एनीथिंग कैन बी यूज्ड एज़ अ सर्विस ऑन द क्लाउड। तो इस पिछले 50 साल में और 60 साल में अगर हम देखें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ इंक्रीज़ रैपिडली और अब अगर हम देखें तो आफ्टर 2020 अब हमारी ये ज़रूरत बन गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी एक ज़रूरत बन गई है। अब हम कहीं रह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब हम आज अगर देखें ड्यू टू कोरोना अब क्लासेस हम ऑनलाइन ले रहे हैं। अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग केम इन द एक्जिस्टेंस। हम बात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, अब हर जगह देखो आप तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ इन एक्जिस्टेंस। नाउ यू कैन नॉट think without you cannot think computing without cloud. So this is all about history of the cloud computing. Now, what are different benefits of cloud computing? So cloud computing has numerous advantages. I have tried to list some of them, some important advantages I have tried to list here. First is one can access application as utilities over the internet. Means आप यूटिलिटी के तौर पे कोई भी एप्लीकेशंस को इंटरनेट पे यूज़ कर पा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें, अगर आज हम मीटिंग्स कर रहे हैं, आज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो वी आर यूज़िंग अ ज़ूम। ज़ूम इज़ एन एप्लीकेशन और हम उसे ऐसा यूटिलिटी हम ऐसा इंटरनेट पर यूज़ कर रहे हैं। सेकंड अगर हम बात करें, अमेज़न चाइम करके एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम चैटिंग का और ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स करके है। तो दीज़ आर सम डिफरेंट एप्लीकेशंस दैट कैन बी यूज्ड ओवर द इंटरनेट for conferencing, for webinar, for chatting, etc. Second, one can manipulate and configure the applications online at any time. Means अगर आप कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन यूज कर रहे हो तो यू कैन इजीली मैनिपुलेट एंड कन्फ्यूगर दैट एप्लीकेशंस। तो मीन्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने डिमांड के हिसाब से उस एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगर कर लेते हो और मैनिपुलेट कर लेते हो। नेक्स्ट, इट डज़ नॉट रिक्वायर टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर टू एक्सेस और मैनिपुलेट क्लाउड एप्लीकेशंस। तो क्लाउड एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए, क्लाउड एप्लीकेशंस को मैनिपुलेट करने के लिए मुझे अपने सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है और मुझे कुछ नहीं करना है। जस्ट यू यूजिंग नेटवर्क, यूजिंग इंटरनेट, आप लॉगिन करें और सब कुछ आपको बी रेडी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट ऑफर्स ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स, प्रोग्रामिंग रन टाइम एनवायरमेंट थ्रू प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल। मीन्स ऑनलाइन हमें प्रोग्रामिंग टूल्स, ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट टूल्स, ऑनलाइन रन टाइम एनवायरमेंट वो सब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं अगर हम उसका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल को यूज़ करते हैं तो। फिर अगर हम बात करें ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस की, तो वी कैन हैव डिफरेंट रिसोर्सेज वी विदाउट इंटरेक्शन विथ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स सबको सब मेरे पास
फिगर आउट होता है उसमें कि आपको क्या चाहिए है। जस्ट मीन्स आपको उसमें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। You can automatically, or you can, as per your requirement, with the help of application, with the help of software design, you can uh, offer, or you can accept different types of demand as self services। मीन सेल्फ सर्विस काम करना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। कैसे है? इट ऑपरेट्स एट हाई एफिशिएंसी विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्योंकि अगर जैसे हम पिछली बार प्रीवियस क्लास में भी हमने बात करी थी कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी चालू कर रहे हो, तो आप 5 लाख से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे कल आपका बिजनेस किसी कारण से 2 महीने को डिले हो जाए। जैसे अब मान लीजिए आज कोरोना के कारण बिजनेस बंद है लोगों के, और इस 1 महीने या 2 महीने में अगर हमारी मशीन्स कोई काम नहीं कर रही होती, तो फिर आपको क्या हो रहा होता? लॉसेस चालू हो गए होते। लेकिन अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे होते या क्लाउड कंप्यूटिंग मशीन्स को अगर हम यूज़ कर रहे होते, तो हम जितना काम करते हैं उतना ही अमाउंट उसको पे करते हैं। पे एज़ यू यूज़, हमने जो बात पिछली बार पिछली लास्ट क्लास में भी बात करी थी, और पे एज़ यू यूज़ की बात होती है यहाँ पे। मीन्स जितना आप यूज़ करोगे यू जस्ट पे इट, और आप नहीं यूज़ कर रहे हो, स्टॉप पेमेंट। तो अगर अपन ओवरऑल देखें तो इट्स अ वेरी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ऑल्सो। Also, cloud computing offers load balancing that makes it more reliable। तो लोड बैलेंसिंग से तात्पर्य यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए अभी जब मुझे ज़्यादा एक्सेस करने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा सिस्टम की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम की ज़रूरत है, तो हम सेल्फ सर्विस ऑन डिमांड ले सकते हैं। और मुझे अगर नहीं है ज़रूरत, तो हम हट सकते हैं। सेकंड, वी कैन यूज़ लोड बैलेंसिंग। सपोज हमारे पास अभी 10 सिस्टम की जरूरत नहीं है, 5 की जरूरत है, 5 का यूज कर सकते हैं। मतलब यू कैन बैलेंस द लोड हियर ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। So what is service oriented architecture? So service oriented architecture, basically it's a style of some software design where services are provided to the other components by application components using some communication protocol over a network. We can see here that service oriented architecture is an architectural design which includes collection of services in the network which communicates with each other. So the services is a kind of operation which is well defined, self contained, that provides separately functionality such as checking customer accounts detail, printing bank statement, etc., and does not depend on the state of services. So here you can see that in the figure that there is a cloud clients, for example, that is the browser and the mobile devices. Then there are cloud applications that we use, फॉर एग्जाम्पल हम गूगल क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं, देन गूगल डॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को यूज़ कर सकते हो, आप कैलेंडर्स को यूज़ करते हो, आप अपॉइंटमेंट्स को यूज़ करते हो टू रिकॉर्ड योर अपॉइंटमेंट्स। फिर आप कुछ क्लाउड सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। तो हियर यूजिंग सम वेब बेस्ड सर्विसेज को हम यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। फिर देयर इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, देयर आर वेब सर्वर्स एंड एप्लीकेशन सर्वर्स। फिर देयर आर सम क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो, और फॉर्मली आज की डेट हम उसको यूटिलिटी कंप्यूटिंग कहते हैं। देन ओवरऑल वी सी दैट देयर इज अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल साइट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर that is by enabled by some virtualization concept. So basically SOA जो है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर,
इट्स प्रिंसिपल ये है कि इट्स डिपेंडेंट ऑफ वेंडर्स एंड अदर टेक्नोलॉजी। हियर नंबर ऑफ सर्विसेज कम्युनिकेट विथ ईच अदर। किसी भी एक तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे थ्रू पासिंग डेटा और यूजिंग टू और मोर सर्विसेज कोऑर्डिनेटिंग एन एक्टिविटी। मीन्स या तो डेटा पास करके कर सकते हैं, या दो से अधिक सर्विसेज को में कोऑर्डिनेशन बना के किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एक्सेट्रा। So this is an S service oriented architecture or SOA. Now the question is why to use SOA? हम इसका यूज करें तो करें क्यों? Basically it's widely used in the market which responds quickly and makes effective changes according to market situation. मार्केट में वाइडली यूज होता है और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम इसको चेंज कर लेते हैं यूजिंग सेल्फ सर्विस। सेकेंड, इट्स कीप सीक्रेट द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ द सब सिस्टम। इन सबको सीक्रेट है यहाँ पे, आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, क्या किया है। नो, सिंस यू हैव डन ऑल एवरीथिंग इन द क्लाउड, so nobody can access your cloud until and unless he crack or breach it. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट अलाउज इंटरेक्शन ऑफ न्यू चैनल विथ कस्टमर्स, पार्टनर्स एंड सप्लायर। मीन्स देयर इज सम facility to interact with the customers and partners and supplier। अगर हम लास्ट देखें कि और देखें कि इट ऑथराइज द कंपनीज टू सेलेक्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ द चॉइस एज इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो इट कंपनीज को ऑथराइज करता है टू सेलेक्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ द चॉइस सिंस इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होने के कारण हम अपने हिसाब से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चूज कर सकते हैं। फिर अगर अपन देखें सॉरी, इट्स वाइडली यूज्ड इन द मार्केट। सॉरी, इससे रिपीट हो रहा है सेंटेंस स्लाइड। तो नाउ we see what are the different advantages of SOA. So SOA allows you reuse the service of an existing system, alternately building the new system. हमें यहाँ पे reusability की बात आ जाती है। यहाँ पे we can use reuse the service of an existing system. Second, it allows plugging in new services or upgrading existing services to place the new business requirement. So we can opt for a new services or we can go for upgradation of existing services जो हमारी अभी समय चल रही थी, और वो हम इजीली यूजिंग सेल्फ सर्विस हम कर पाते हैं। थर्ड अगर हम देखें तो इट कैन इन्हांस द परफॉर्मेंस, द फंक्शनलिटी ऑफ अ सर्विस एंड इजीली इट मेक्स द सिस्टम अपग्रेड। मीन्स हम अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, अपनी फंक्शनलिटी को बढ़ा सकते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो हमारा सिस्टम को हम अपग्रेड इजीली कर लेते हैं। It has the capability to adjust or modify different external environments and large applications can be managed easily। अगर हम यहाँ देखें तो we can modify or adjust different external environments, or we can also manage big or large applications very easily। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंपनीज एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो वी कंपनीज दैट डेवलप एप्लीकेशंस विदाउट रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। कंपनीज जो है वो अपने नए एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाएंगे और पुरानी एप्लीकेशंस को विदाउट रिप्लेसिंग देम, मीन्स उन पे काम चलता रहेगा और नई न्यू एप्लीकेशंस को अपने डेवलपमेंट पे काम चलता रहेगा, और दे कैन इजीली मूव
over them. Further, अगर हम देखें तो it provides reliable applications in which you can test and debug the independent services as compared to large number of code. तो यू कैन यहाँ पे टेस्टिंग की बात अगर हम करें तो वी कैन हैव अ reliable applications for testing and debugging the different services independently. So these are some advantages of SOA. अब हम उसकी सर्विसेज की बात अगर करें तो यू कैन सी द फिगर हियर. तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो है, आप उसका नाम को ही अगर आप ढंग से समझें, सर्विस ओरिएंटेड मीन्स you are using different types of services on the internet or on the web or on the cloud, you can say that. So this is service oriented type concept. So here you can see that in the figure there are service categories in the middle, and there is entity service, task service, utility service, proxy services, and these all comes on the categories, and then these services are used by device, process, and business. So let us see what are that does these services means. So entity service means here it includes entities of customer such as purchase order, insurance policy, invoice of order, order date, and in which you can perform CRUD applications such as create, read, update, and delete operations on the entities. So these are some entity service. अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम पे आप जाते हो और कुछ भी खरीदते हो, या सॉरी पॉलिसी पे मत जाओ, आप अमेजोन पे चले जाओ. यू आर गोइंग ऑन अमेजोन एंड यू आर बाइंग सम प्रोडक्ट देयर. तो एक वहाँ पास क्या क्या एंटिटीज आ रही हैं, देखो. तो आप यू आर परचेसिंग, आपका एक इनवॉइस जनरेट होगा, एक ऑर्डर जनरेट होगा, फिर आप चाहो तो उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो, उस ऑर्डर को अपडेट भी कर सकते हो, उस ऑर्डर को देख भी पा रहे हो मीन्स रीड भी कर पा रहे हो, फिर उस ऑर्डर को आप ट्रैक भी कर पा रहे हो मीन्स दैट इज एंटिटी. टास्क सर्विसेज से तात्पर्य हमारे यहाँ पे है कि इट एड्स द बिजनेस लॉजिक टू अदर सर्विसेज, and due to its focus on business entity, it contains low amount of reusability. The task service provide operation on more than one entity such as customer purchase order, creating purchase order number, validating customer detail, etc. A service is also called a task service when it needs to access the multiple entities. यहाँ पर जब बिजनेस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल अगर एंटिटीज को एक्सेस करना हो, देन वी कैन सी दैट इज अ सर्विस और अ टास्क सर्विस ऑल्सो. टास्क सर्विस सॉरी. देन यूटिलिटी सर्विसेज. तो it's technology oriented services which are used to build larger and higher level services and provides other capabilities which are unrelated to message transfer. So the utility services provides reusable function such as event logging, creating unique number, and notification, etc. to the other functional domains. So these services contain small, closely packed services which are used as a building blocks in service-oriented system. So यूटिलिटी सर्विस के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई इवेंट लॉग हो रहा है, क्रिएट कोई यूनिक नंबर की बात हम कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे स्मॉल सर्विसेज से कोई एक लार्जर और हायर लेवल सर्विसेज को हम बिल्ड कर रहे हैं, then we can say that's utility services. Then comes the next category, that is a proxy services. It contains the services which act as a connection between members of the services oriented system and conflict subsystem. Means the device and the process services
अभी हमने जो पिछले फिगर में देखा था कि जो डिवाइस सर्विसेज थी और प्रोसेस सर्विसेज थी, वो इस सर्विसेज के अंतर्गत ही आती हैं। और समटाइम्स these services which are defined under proxy services are also called as a gateway services. तो ये बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम ये और सब सिस्टम होता है जो उसके बीच में एक प्रॉक्सी जैसा काम करता है। और इसके अंतर्गत ही वो डिवाइस और प्रोसेस सर्विसेज आती हैं। बेसिकली इस वर्क एज अ गेटवे सर्विसेज ऑल्सो। तो डिवाइस सर्विस क्या है यहाँ पे और प्रोसेस सर्विस क्या है? सो डिवाइस सर्विस बेसिकली इट्स अ kind of proxy services which is referred as a hardware device and it is used to communicate between other services. यहाँ पर हम बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस की बात ही कर रहे हैं जो दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करने की पीछे मदद करते हैं। प्रोसेस सर्विस क्या होती हैं? बेसिकली द डिवाइस सर्विसेज इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी सर्विस विच एक्ट एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन एप्लीकेशन एंड सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम मेंबर्स। तो यहाँ पर बेसिकली इट एक्ट एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन एप्लीकेशंस and service oriented systems. Now, what is a business service? So business services are also known as controller services which provides business functions for the completion of the business process and are flexible services that changes the business needs. So these services basically develop the business applications that automate the business process such as managing the customer services, shipping of the customer product, etc. So जितने भी प्रकार की अगर हम बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस दिस सर्विस. So the question is why the service oriented architecture is important. तो अगर अपन देखें यहाँ इन द फिगर को अगर देखें अपन ध्यान से तो पहले अगर देखें अपन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के पहले अगर अपन देखें तो वी आर एक एप्लीकेशन डिपेंडेंट बिजनेस फंक्शन था, कुछ डेटा रिपोजिटरी थी और इट वाज बेसिकली कुछ कैटेगराइज था, मतलब तीन ही मॉड्यूल बनाए हुए थे। यहाँ पे तीन ही कंपोनेंट्स हम दिखा रहे हैं। ये कंपोनेंट्स में सर्विस शेड्यूलिंग की बात हो रही है, सेकंड कंपोनेंट में ऑर्डर प्री प्रोसेसिंग की बात हो रही है, थर्ड में हम देखें तो अकाउंट मैनेजमेंट की बात हो रही है। फिर उसके अंदर कुछ सर्विसेज दी। लेकिन जब हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स में करते हैं बात तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे और हमने कुछ डिफरेंट सर्विसेज में उसको तोड़ दिया। तो फिर कुछ कंपोजिट एप्लीकेशंस की बात हुई जिसमें हम कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग या प्री प्रोसेसिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, फिर हम देखें आप उनको कुछ रीयूजेबल सर्विसेज की बात हमने यहाँ पे कर ली जो कहीं कॉमन हम उनको रीयूज कर सकते हैं। और फिर वो डेटा जो हमारा है वो डेटा रिपोजिटरी में जा रहा है। तो कलर से भी आप देखो कि कुछ जो कलर हमने बनाए हुए हैं, अगर आप देखें ब्लू कलर और ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं कुछ फिगर्स को, तो यू कैन सी दैट रीयूजिबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर और रीयूजिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स यहाँ पर हमने कुछ यूज किया हुआ है। जब रीयूजिबिलिटी हमारी बढ़ गई तो क्या हो रहा है कि हमारा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है या यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनको हम इजीली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल about service oriented architecture. Now we will continue about next topic, that is some concept of what is web and etc. Thank you for today. Thank you. Have a nice day.